Okay, so very good afternoon, everyone. Quickly take out everyone the question answer of the chapter number 19. If anyone having any doubts related to chapter number 19, you can ask first. After then, we will move to the question answer discussion. Very nice. Only one student's response I get. What about the rest of all? Ayushi told Vidya, Manan, Harshit, Ravis, Isa. Quickly tell if anyone having any doubts of a particular topic. Okay, no. बहुत बढ़िया. Moving further to the question answer discussion of this particular chapter, we have started with the innovations and discoveries, and we have learned several types of inventions and then discoveries. Okay, so first we have started with the invention versus discoveries. The difference between inventions and discoveries. Inventions means that something new which if anyone discoveries, and discovers means to डिस्कवर वट एवर ऑलरेडी इन्वेंटेड, जो ऑलरेडी इन्वेंट किया हुआ है उस पर कुछ इनोवेशंस, उस पर कुछ नया इम्प्रूवमेंट वर्जन निकालना. ठीक है, जैसे अगर हम लोग अभी बात करें सैमसंग का जो फोन है उसका काफी सारा मॉडल जो है वो डिस्कवर होते रहता है, तो उसका मतलब है कि दीज ऑल आर डिस्कवरीज. और जो सबसे पहले फोन बनाए हैं that is comes under that invention. Okay, after then moving to the first type of question which is related to I learn I answer, means you have learned, you have to now answer. So quickly tell me 101, whoever especially I will ask, that particular students first will try to answer, and after then if that particular students not able to answer, then the rest of all will can answer. Okay, so first question I am asking to Manan Agrawal. Manan Agrawal, quickly tell me the first steam engine was invented by whom? किसने फर्स्ट स्टीम इंजन जो है वो इन्वेंट किए थे? हाँ, नो, इन ऑडियो यू कैन टेल बिकॉज आई एम यूजिंग हेडफोन नाउ. Thomas Newcomen in 1712. Exactly, it's very good. The first steam engine was invented by Thomas Newcomen, and this is in 1712. ये नॉर्मली अगर बुक में से देख के आंसर करना हो, दिस इज वेरी इजी, बट दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू कीप इन माइंड. नॉर्मली आप लोगों का जो, हाँ, बुक में पढ़ चुके हो, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि एग्जाम में जब भी आता है तो ये ऑप्शंस जो है वो कभी नहीं रहता है. फिल इन द ब्लैंक्स में मान लीजिए इस तरह से ब्लैंक्स दिया हुआ है, तो ये याद करना या याद रखना बहुत बड़ी बात होता है किसी का. हाँ हाँ, इस गुड, आपने फिल किया होगा तो ये आपने बुक से देख के ही किया होगा, राइट. बट यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि यू नीड टू कीप इन माइंड ऑल्सो दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन इज इन्वेंटेड स्टीम इंजन इन दिस पर्टिकुलर ईयर. तो ये याद रखना, ये समझ के अपना माइंड में रखना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इस तरह से सारा क्वेश्चंस में ये चैप्टर में इसी तरह से है, मतलब ऐसा कुछ ट्रिक्स या इस तरह से कुछ नहीं है कि आप जो है इसको समझ के जो है इजीली आंसर कर सको. ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको समझ के माइंड में रखना पड़ेगा. ठीक है, moving to the second question, that is Humphrey Davy's invention is known as and what?
So let me answer this question. Ayushi Raj, Ayushi, tell me what will be the answer of this question. Humphrey Davy's invention is known for what? What Humphrey Davy's invent that you have to tell. Question number two of I learn, I answer. Is known as what? Who has invented first electric light bulb? No, Thomas Alva Edison actually invented a bulb with the filament. I mean, bulb with the filament, not electric light bulb. Light bulb जो है, that is invented by Humphrey Davies only. That is 1802. तो ये इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब जो होता है इसके लिए ही इनको जाना जाता है. ठीक है. थॉमस एडिसन जो है he is known as, I mean, just he has improved the that this version of the bulb only. And इन्होंने जो है 1879 में जो है ये फिलामेंट के साथ जो है बल्ब ये किए हैं. ठीक है. इससे पहले जो है 1802 में ही ऑलरेडी इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब जो है हैम्फ्री डेविस ने इन्वेंट कर चुका था. ठीक है. Understood? So this is for electric light bulb only. Okay. Are you see? Understood? If you see in page number 134 of your book, wherein it is written or it is given in electric light bulb. Yes, in third point, the first electric bulb was invented by that person. Okay. Moving to the third question, which will be answered by Isa Kumari. So, Isa, tell me, X-rays were discovered by whom? किसने एक्स रेज का डिस्कवरीज किया? अच्छा, एक्स रेज के बारे में और एक चीज आप लोग को बता दें, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये कि एक्स रेज का नेम जो है वो एक्स रेज ही क्यों रखा गया? एग्जैक्टली एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस, नॉर्मली आप लोग ने ऑब्जर्व किया होगा कि मैथमेटिक्स में जब हम लोग कुछ कैलकुलेशन करते हैं और जिसका वैल्यू पता नहीं होता है, हम लोग क्या करते हैं, लेट अस कंसिडर द वैल्यू इज एक्स, लेट अस कंसिडर द वैल्यू एक्स. तो इस तरह से इनको कुछ नाम मिला नहीं तो इन्होंने इसको मान लिया कि एक्स रेज, और इसी से ये रेज का जो नेम है वो एक्स रेज पड़ा. हाँ, नहीं, रेज तो नॉर्मली सबसे निकलता, मतलब नॉर्मली रेज से भी निकलता है. रेज मीन्स ए बीम ऑफ लाइट. इट कैन बी एक्स रेज ऑल्सो, इट कैन बी नॉर्मल रेज ऑल्सो, एज लाइक द रेज ऑफ लाइट, bulb, or anything, any rays. But this is named as X rays because at that time he was unaware, or he just don't know what name he want to keep or he will keep. So that is why he just kept it as like X-rays only. Okay, so who has discovered? Sorry, I was asking to Isa Kumari. Hmm. Isa, who has discovered X-rays? We have already taught or we have already discussed in the chapter. और ये भी जो एक्सरेज जो है ना, ये भी एक्सीडेंटली अगर देखा जाए तो डिस्कवर किया गया था. मतलब वो जो है घर में ही कभी कुछ मतलब एक रेज पे काम कर रहे थे तो देखे वो उनका वाइफ का जो हैंड था उनका वो जो है पिक्चर्स जो है उनको दिखाई दिया इसमें रेज में. तो उसके बाद जो है उन्होंने इसको और भी डीपली एक्सपेरिमेंट करके इसके बारे में इसको निकाला. ठीक है. Isa Kumari, are you getting my voice?
Okay. So can you tell me who has discovered X-rays? Yes, exactly. The rays were discovered by Willem Rongteng. रिंगटोंग, हाँ, RONTGEN। तो ये सारे नेम्स जो है ना, इस तरह से नेम है जो प्रोनाउंस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो याद तो बाद में रखोगे, तो इसीलिए काफी प्रैक्टिस करना पड़ेगा याद करने के लिए। अगर ऑप्शंस रहता है नॉर्मली एमसी क्वेश्चंस में, दैट इज वेरी इजी टू choose the correct options or just write the options, but here the questions are fill in the blanks type of questions। तो अगर आप लोग का fill in the blanks type मतलब descriptive type exam होता है, at that time you will face problems, so you just practice a lot। Okay, next question is question number 4. Dash invented the first wireless telegraph in 1895? Arpit, quickly tell me who has invented the first wireless telegraph? Arpit Jalan. He is in class. Arpit, unmute yourself and tell the answer. Moving to Yuvraj. Yuvraj, can you answer the this question? Who has invented first wireless telegraph? Moving to Ravis. Ravis, quickly tell me. Are you getting my voice, Ravis Kumar? I think Yuvraj is also getting. Yuvraj, tell me, do you know who was the first inventor of wireless telegraph? Exactly. This is the Guglielmo Marconi was the person who has first invented the wireless telegraph in 1895. Okay. Who is talking? Please put on mute. Abhigyan. So, Guglielmo Marconi is the person who has first discovered wireless telegraph in 1895। यहाँ पे दो तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब सबसे पहले जो है वायरलेस टेलीग्राफ का इनोवेशन हुआ है, या तो किसने किया है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से सारा डिफिकल्ट चीज़ें हैं जो कि नेम और ईयर, ये दो चीज़ आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देन ओनली इट विल बी यू कीप इन माइंड। सो दिस इज Guglielmo Marconi who has invented this. Moving to the fifth question, which will be answered by Ravis. Ravis Kumar, quickly unmute yourself and tell who has invented this. Ravis Kumar, can you getting my voice? Are you getting my voice? So can you tell me who has discovered the penicillin in 1928? तो इस तरह का क्वेश्चन देखो, यहाँ पे भी दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु हैज डिस्कवर्ड एंड व्हेन पेनिसिलिन इज डिस्कवर्ड। पेनिसिलिन जो है ये एक मेडिसिन है, एंटीबायोटिक मेडिसिन है, जिसमें जो है हम लोग का बॉडी में जो भी एंटीबायोटिक्स मतलब जो भी ये आते हैं जर्म्स वगैरह आ जाते हैं, उसको किल करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये सबसे पहले किन्होंने डिस्कवर किया था और किस साल में किया था? दिस इज द थिंग विच इट इज आस्किंग इन दिस क्वेश्चन। यस रवीश, क्विकली टेल। नो, हर्षित राजगुप्ता। रवीश इज टेलिंग हु एग्जैक्टली, डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग।
Okay, so Alexander Fleming is the person who has discovered penicillin in 1928. तो ये दोनों चीज आपको याद रखना है, अलेक्जेंडर का भी नेम रखना है और 1928 जो ईयर है इसको भी अपना माइंड में रखना है। तो ये सारा चीज ना एक बार पॉइंट आउट कर लेना और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, तभी जो है याद रहेगा। ठीक है, and because it is not only the MCQ, it can be the next time the exam, your exam may be descriptive type also, so wherein you can you may need to be fill in the blanks type of questions or descriptive type questions also. So at that time it will you need to remember these all things. It can be, I mean, options may not be there also. So, question number 6, we are moving to, which is asking about the penicillin. Penicillin was developed from what? So, it is actually developed from a penicillium mold. तो इसमें क्या था ना, इसके पीछे भी एक एक्सीडेंटल इंसिडेंट है कि ये जो साइंटिस्ट थे, ये भी एक जो है डिश जो होता है, एक जो नॉर्मली बाउल टाइप का होता है, वो विंडो के सामने रख दिए थे काफी दिन। तो उसमें जो है जर्म आ गया था, और उसके बाद उसमें जैसे ही इन्होंने पेनिसिलिन डाला तो वो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उसमें जो भी जर्म्स आया था तो वो सब खत्म हो गया। ठीक है, तो उसके बाद ही जो है उस बेसिस पे इन्होंने पेनिसिलिन का डेवलपमेंट किया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा तो ये हो जाएगा पेनिसिलियम मोल्ड। ओके, yes, so up to question number 6, I hope everyone understood all the fill in the blanks type of question, and you just quickly do the quick revision of all. First question's answer is the first steam engine, which is invented by Thomas Newcomen. सो थॉमस निकोमैन ने 1712 में जो है स्टीम इंजन का इन्वेंशन किए थे। उसके बाद सेकेंड इज हैम्पेरिस डेविस इन्वेंशन इज नोन फॉर इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब। ओके, थर्ड इज एक्स-रेज वेर डिस्कवर्ड बाय विल्हेम रोंटेंगन। उसके बाद गुलिलेमो मार्कोनी इज द पर्सन हु हैज फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरलेस टेलीग्राफ, and then Dr. Alexander Fleming is the person who has discovered penicillin in 1928, and penicillin was developed from a penicillium mold. Okay, moving to the long answer type of questions wherein asking answer these question. The first question which it is asking is who invented the first efficient steam engine. सो फर्स्ट एफिशिएंट स्टीम इंजन का बोलने का मतलब ये है कि स्टीम इंजन जो है वो सबसे पहले किसने बनाया जो कि यूजफुल था, मतलब एफिशिएंट था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले बताएं, कौन दे सकते हैं? थॉमस न्यूकोमैन ओनली। But he actually first working steam engine he was invented. But if we are talking about the efficient engine, then efficient engine का अगर आप बात करो तो जिसको इम्प्रूव वर्जन्स बोला जाता है, दैट इज एग्जैक्टली जेम्स वर्ट। सो द आंसर विल बी जेम्स वर्ट ओनली, बिकॉज जेम्स वॉट ने जो है वो इफिशिएंट स्टीम इंजन का जो है इन्वेंशन किए, जो कि 1769 में किए। ठीक है, तो इस तरह से स्टीम इंजन पहले हुआ करता था जिसमें स्टीम रहता था, इस तरह से यहाँ पे स्टीम चैम्बर हुआ करता था, और इधर से जो है ये डाला जाता था, कोयला वगैरह जला डालता था, जिसमें यहाँ पे बर्न होता था, आग जलता था, और इससे जो है हीट प्रोड्यूस करके जो है इस तरह से ट्रेन जो है वो चलती थी। ठीक है, तो जेम्स वाट will be the correct answer, who has invented first efficient steam engine in 1769. Okay, I am removing अभिज्ञान from the class. Okay, मैं अभिज्ञान को क्लास से रिमूव कर रहा हूं।
How many times I need to tell you all? I don't know कि either you just put on mute or just talk only. No need to attend the class. You will not understand. Avigyan. Okay, so moving to the second question, which is asking who invented the first light bulb. तो यहाँ पे लाइट बल्ब पूछा गया है, इसका हम लोग को ध्यान में रखना है। यहाँ पे दो तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक तो लाइट बल्ब पूछा जा सकता है, या तो एक जो है फिलामेंट के साथ जो है लाइट बल्ब आता है, फिलामेंट बल्ब जो होता है, दैट इट कैन बी आस्क्ड। तो यहाँ पे अगर हम लोग लाइट बल्ब का बात करें तो दैट विल बी हैम्परी दवे ओनली, विच इज इन 1802। तो 1802 में जो है इन्होंने पहले का जो एयरली लाइट बल्ब आया करता था ये इन्होंने डिस्कवर किया था। और उसके बाद जो थॉमस एडिसन ने जो किया वो दैट इज that filament, matlab light bulb with the filament only. Okay, but this type of bulb which is invented by Ampere Deve, that is not so much efficient, means this type of bulbs are quickly burned due to heat overheating, or these type of bulbs we can't use in our home also or in office also for a long time. तो इस तरह का जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइप्स का जो है बनाया था इन्होंने। इसके बाद जो है इम्प्रूव वर्जन्स अभी जो है, और इतना इस तरह से इतना इम्प्रूवमेंट आ गया कि अभी आप लोगों को पता भी नहीं चलता है कि लाइट्स कहीं पे लगाए हुआ है। ठीक है, मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन wherein it is asking about what the X rays is. X rays होता क्या है and what are they used for? तो ये किस लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे दो क्वेश्चन हैं जिसको एक साथ मर्ज किया गया है, दैट इज व्हाई दिस इज स्लाइटली लॉन्ग एंड यू हैव टू जस्ट राइट अबाउट एक्स रेज एंड द यूज ऑफ एक्स रेज। सो एक्स रेज यू कैन राइट लाइक दिस कि these are the form of electromagnetic radiations having high energy and can pass through most of the object like human body also. तो यहाँ पे सिंपली आप ये लिख सकते हो कि एक्स रेज आर ए टाइप्स ऑफ रेज ओनली और टाइप्स ऑफ लाइट रेज ओनली। ओके, जिसका एनर्जी जो होता है वो बहुत हाई होता है, विथ हायर एनर्जी। तो ये अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप नहीं समझ रहे हो क्योंकि दिस इज ए टेक्निकल और इलेक्ट्रॉनिकल टर्म, तो साइंस में इसमें फिजिक्स में यूज होता है, आप जो कि आपका आगे का क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर नहीं समझ में आता है तो सिंपली आप लिख सकते हो कि एक्स रेज जो होता है एक लाइट का ही रेज होता है जिसका एनर्जी लेवल जो होता है दैट इज हाई। ओके, एंड दैट कैन पासेस थ्रू द मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बॉडी ऑल्सो। तो बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स है जिससे ये पास कर जाता है। नॉर्मली अगर आप ऑब्जेक्ट का बात करोगे तो यहाँ पे तीन तरह का ऑब्जेक्ट्स आप अपना हमारे क्लास 6 में आप पढ़ोगे, जिसमें कुछ ऑब्जेक्ट होता है जिससे लाइट जो है वो पार हो जाता है, कुछ ऑब्जेक्ट्स होता है जिससे लाइट पार नहीं होता है, और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसा भी होता है जिसमें लाइट पार्शियली पार होता है। ठीक है, तो अगर ह्यूमन बॉडी का बात करें तो वो एक जो है इस तरह से ऑब्जेक्ट है जिसमें लाइट, नॉर्मल लाइट जो होता है वो पार नहीं होता है, बट ये जो एक्स रेज होता है ये पार हो जाता है। ठीक है, तो यूज अगर आप लिखना चाहो तो इसका लिख सकते हो कि एक्स रेज आर यूज्ड फॉर टेकिंग द इमेजेस ऑफ ह्यूमन बॉडी का इंटरनल ऑर्गन्स का जो पिक्चर्स होता है, इमेजेस होता है, ये देखने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, Question number 3, understood everyone how to write the answer? It is not necessary that you have to write whatever I have written here or I have told here. You can write by your own way. You can use your own thinking. That is only the education. ऐसा नहीं है कि जो बताया गया जो बुक में है वही आपको लिखना है। जो आपको समझ में आ रहा है, जो आपको जिस तरह से आपने समझा है उसके हिसाब से अपने लैंग्वेज में लिखना is the basic things. That is the most important. एंड उसमें ही अच्छा मार्क्स आपको मिलता है। ठीक है, इसीलिए कभी कभी आप एग्जाम में जाओगे तो देखना सिंपली लिखा रहता है कि राइट इन योर ओन वर्ड्स। ओन वर्ड मीन्स ये है कि आप बुक का कॉपी नहीं करिए या इस तरह से कुछ आंसर्स का कॉपी नहीं करिए। ठीक है, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन इट इज आस्किंग अबाउट व्हाट वाज ए वायरलेस टेलीग्राफ। वायरलेस टेलीग्राफ का मतलब क्या होता था?
तो simply from the term wireless only you are understanding, or you may just think that wireless means without wire. That means okay, so this that type of telegraph wherein the wire was not used, तो wire का use नहीं होता था. तो इस तरह का टेक्नोलॉजी जो होता है which is I mean signals we send through the air for a long distance, that type of telegraphs are called wireless telegraphs. Okay. So it's a technology through which we can send any signals, that is audio signals or this type of voice through the air across a long distance. Normally हम लोग अगर बात करेंगे या चिल्लाएंगे भी तो इतना जोर से चिल्ला सकते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आमने सामने तक ही जाएगा. तो ये अगर लॉन्ग डिस्टेंस का बात करें तो ये इसके लिए हम लोग का वायरलेस टेलीग्राफ का यूज होता है. ठीक है. और पुराना जो है ओल्ड मॉडर्न टाइम में जो मतलब पहले के ज़माने पे इस तरह से काफ़ी चीज़ें हुआ करता था एक टेलीग्राफ के लिए. एक टेलीग्राफ का काफ़ी सारा पार्ट्स होता था और इस तरह से बातें होता था. ठीक है. और उतना इजीली नहीं होता था. ठीक है. मूविंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, wherein it is asking about antibiotics. So question is asking what are antibiotics, that's all. So antibiotics are a types of medicines which help to destroying the bacteria and preventing their growth. मतलब हम लोग का मान लीजिए जब बुखार वगैरह हो जाता है या हेल्थ खराब होता है तो उसमें क्या होता है, काफ़ी सारा केसेस है जिसमें इंटरनल हम लोग का बॉडी में जो है बैक्टीरिया अटैक कर लेते हैं और वो जो है हम लोग का बॉडी को वीक कर देता है. तो एंटीबायोटिक एक ऐसा मेडिसिन है जो हम लोग का जो बैक्टीरिया होता है बॉडी के अंदर उसको जो है वो खत्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उसका जो ग्रोथ होता है उसको भी रोक देते हैं. प्रिवेंशन मतलब उसको रोकना होता है. ठीक है. और हमने प्रीवियस क्लास में भी जैसे बताया था कि बैक्टीरिया का जो ग्रोथ होता है वो काफी तेज से होता है. तो मतलब वो इवन मिनट में सेकंड में जो है वो अपना प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज करता है, वो अपना जो है बढ़ते जाता है. ठीक है. तो this is all about the antibiotics. This is the particular person whose name is Alexander Fleming, जिन्होंने एंटीबायोटिक्स जो है वो डिस्कवर किए थे. ठीक है. डॉक्टर अलेक्जेंडर ने 1928 में जो है फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जिसको बोला जाता है वो इन्होंने डिस्कवर किया था. ठीक है. Moving to the further question, which is question number 6, that is asking how was penicillin discovered. जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि पेनिसिलिन का डिस्कवरमेंट जो है एक्सीडेंटली हुआ था कि इन्होंने जो है एक बावल रखा हुआ था विंडोज के सामने, जिस यहाँ पे डिश लिखा हुआ है तो डिश रखा हुआ था, उसमें जो है इन्होंने ऑब्जर्व किया कि पेनिसिलिन मोल्ड जो है उसका यूज करने के बाद वो उसका जर्म जो है वो वेनिश हो जाता है और इसी से जो है बाद में इन्होंने पेनिसिलिन का डिस्कवरी किया. ठीक है. यही है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जिन्होंने किया है. एक एक्टिविटी है आप लोग का जिसमें ये पूछा गया है कि आपको कोई एक ऐसा रिसर्च करना है या पता करना है किसी एक चीज के बारे में जिसमें क्या होता है कि मेडिसिन्स में, मेडिकल फील्ड में जो है वो काफी मतलब इम्प्रूवमेंट किया हो या इस तरह से कुछ एक रिसर्च किया हो. तो यहाँ पे एक रिसर्च के बारे में आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ. आप लोग अपने से और इसके बारे में सर्च करके जो है कोशिश करना जानकारी लेने का. अभी इजराइल में एक रिसर्च चल रहा था जिसको बोला जाता है रिवर्स एजिंग. ठीक है. तो रिवर्स एजिंग का मतलब ये होता है कि कुछ लोगों को लेके एक एक्सपेरिमेंट किया गया था और उस पे इस तरह से प्रयोग किया गया था कि उनका जो एज था वो ग्रो होना स्टॉप हो जाता है. तो आप सोच सकते हो कि आदमी अगर कभी बुढ़ापा जो है उसको होए ही ना, मतलब एक तरफ से अगर हम लोग देखें कि अमरत्व का मतलब आदमी कभी जब बूढ़ा ही नहीं होगा तो वो मरेगा ही नहीं. तो इसको उन्होंने किस तरह से किया था कि हम लोग का जो ह्यूमन बॉडी होता है
वो सेल से बना होता है, छोटा छोटा सेल्स जो रहता है उससे बना हुआ रहता है, और वो सेल जो होता है वो हर रोज वो अपना प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाते रहता है। तो वो सेल एक टाइम ऐसा आता है जिस टाइम वो अपना प्रोडक्शन करना बंद कर देता है और अपना सेल का और ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, और नहीं कर पाने के कारण जो है स्किन धीरे धीरे हम लोग का सिकुड़ जाता है और आदमी जो है बुढ़ापा में आ जाते हैं और धीरे धीरे उनका डेथ हो जाता है। तो ये जो सेल्स का मतलब ये होना था, इसको साइंटिस्ट ने क्या किया है, रोक दिया है। मतलब इससे क्या है कि सेल्स का जो ग्रोथ है वो मतलब हमेशा कंटिन्यू सेम रेट में रहता है। और इस तरह से एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने कंडक्ट किया और देखा, ऑब्जर्व किया कि एज में काफी जो है इवन जो मतलब बुढ़ापे की तरफ जा रहे थे वो रिवर्स एजिंग के प्रोसेस में जो है आ रहे थे। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट के बारे में आप लोग एक बार देखना। ये नॉर्मली हमने कुछ दिन पहले देख रहा था, एक आता है डेली न्यूज एनालिसिस करके आता है एक, उसमें मैंने देखा था, आप लोग भी एक बार चेक कर लेना। ठीक है, इसके बारे में और भी काफी सारा मेडिकल फील्ड में रिसर्च जो है वो हो रहा है, उसके बारे में आप कोई भी एक रिसर्च के बारे में लिख सकते हैं, जान सकते हैं, पता कर सकते हैं। ठीक है, moving further to the choose the correct options, you have to just tell the correct answer. So quickly everyone tell me, penicillin was discovered in which year? जल्दी बताएं, कौन सा साल में पेनिसिलिन डिस्कवर किया गया है? You can tell in your exactly 1928 is absolutely correct answer. Then Thomas Edison invented the first incandescent light bulb in which year? Very good, excellent answer. So next question is X-rays were discovered in which year? Super, very nice. 1895 is absolutely correct answer. The first electric light bulb was invented in which year? Exactly, very good. बहुत बढ़िया. I can see only Ayushi is answering all. The rest of all, बाकी सब. Question number 5, quickly tell me, मार्कोनी किस साल में वायरलेस टेलीग्राफ जो है वो पेटेंट किए थे? 1896. 95 is not option. Option is not there. उन्होंने स्टार्ट किया था 1895 में, आफ्टर देन वो 1896 में जो है उन्होंने इसको जो है डिस्कवर किया था। ठीक है, तो 1896 is the correct answer, and this is how we can say first option number D will be correct, second option number C, third D, 4A and 5C. That's all for chapter number 19. Quickly ask if anyone having any doubts. किसी को कुछ अगर doubts है तो जल्दी से पूछें. Very nice. Thank you everyone. Have a good time. Take care and bye bye.